کے بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خشک سردی میں اضافہ، شہر کا موجودہ درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شہر میں سردی کے ساتھ ساتھ دھند میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ شہر میں سردی کے باعث شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ موٹر وے کو شہریوں کی حفاظت کے لیے بند کیا گیا ہے۔ خشک سردی میں اضافہ، شہر کا موجودہ درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں سردی کے ساتھ ساتھ دھند میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں توقیر اکرم سے۔ جی توقیر، آگاہ کیجیے گا۔ شہر لاہور کے موسم نے جو ہے وہ انگڑائی لی ہے اور اس کی جو سردی ہے اس کی شدت میں کمی دیکھنے میں نظر آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور میں 2 دن سے سورج جب نکلنا شروع ہوا تو اس کی گرمائش سے سردی میں جو ہے وہ کچھ حد تک کمی کر دی ہے۔ ابھی اس وقت جو ہے وہ درجہ حرارت تقریباً 11 سے 12 کم از کم ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور آگے جو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مزید سردی جو ہے وہ اس کی کمی ہونے کا امکان ہے، اور چونکہ آگے جو فورکاسٹ بتا رہا ہے اس کے اندر جو کیا کہتے ہیں سورج ہے وہ بھی نکلے گا اور ساتھ ساتھ ہلکے ہلکے بادل بھی رہیں گے، جس کی وجہ سے جو سردی کا درجہ حرارت ہے اس میں کمی بیشی آنے کا امکان ہے، جبکہ موجودہ درجہ حرارت جو بتایا جا رہا ہے وہ 10 سے 11 ڈگری سینٹی گریڈ ہے کم از کم، اور رات کے اوقات میں ممکن ہے کہ اس کے درجہ حرارت میں مزید کمی آئے گی، لیکن دن کے اوقات میں سورج کی وجہ سے جو ہے وہ سردی کی شدت میں کمی آئی ہے۔ لیکن بارش کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی تک کوئی پیشگوئی نہیں کی گئی ہے، اور بارش ہونے کے بعد جو ہے وہ سردی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، لیکن ماہرین کی جانب سے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے، کیونکہ اس سردی کے اندر جو کہ خشک سردی ہے اس سے گلا خراب اور دیگر بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے سکتی ہیں۔ اس حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے، اور شہریوں کو جو ہے وہ ماسک کی استعمال کی بھی ہدایت کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب دھند کی صورتحال میں بھی کافی زیادہ کمی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ ابھی تک جو ہے وہ جس طرح سے گزشتہ روز دھند بہت زیادہ پڑ رہی تھی، اس دفعہ جو ہے وہ آج کے دن جو ہے وہ دھند میں تھوڑی سی کمی دیکھنے میں نظر آئی ہے، لیکن ممکن یہ ہے کہ دھند میں بھی اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ توقیر اکرم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دھند کے باعث پروازوں اور ٹرینوں کا شیڈول درہم برہم۔ ملت ایکسپریس، علامہ اقبال ایکسپریس، پاکستان ایکسپریس گھنٹوں لیٹ۔ لاہور آنے اور جانے والی پروازیں بھی دھند سے متاثر۔ جدہ، ابوظہبی، کراچی، دمام کی پروازیں تاخیر کا شکار ہوئی۔ مسافروں کو گھنٹوں اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور ایئرپورٹ کے اطراف میں دھند کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر رہا۔ رن وے پر حد نگاہ میں کمی کے باعث 2 پروازیں منسوخ اور 10 سے زائد گھنٹوں تاخیر کا شکار رہی۔ فلائٹ انکوائری کے مطابق لاہور سے کراچی جانے والی ایئر بلو کی پرواز PA 403، کراچی سے لاہور آنے والی ایئر بلو کی پرواز PA 404 تاخیر کا شکار رہی۔ لاہور سے جدہ جانے والی سعودی ایئر کی پرواز SV 739 17 گھنٹے لیٹ ہوئی۔ اتحاد ایئر کی ابوظہبی جانے والی پرواز Y 285 13 گھنٹے۔ ابوظہبی سے لاہور آنے والی اتحاد ایئر کی پرواز Y 284 13 گھنٹے تاخیر کا شکار رہی۔ ابوظہبی سے لاہور آنے والی ایئر بلو کی پرواز PA 431 9.5 گھنٹے۔ جدہ سے آنے والی ایئر سیال کی پرواز PF 717 6 گھنٹے تاخیر کا شکار رہی۔ کراچی سے لاہور آنے والی پرواز PK 302 3 گھنٹے 15 منٹ۔ جدہ سے آنے والی ایئر بلو کی پرواز PA 473 9.5 گھنٹے۔ دمام سے آنے والی فلائٹ ناز کی پرواز XY 883 3 گھنٹے تاخیر کا شکار رہی۔ ادھر دھند کے باعث ٹرین شیڈول بھی متاثر رہا۔ ملت ایکسپریس، علامہ اقبال ایکسپریس، پاکستان ایکسپریس گھنٹوں لیٹ ہوئی۔ ریلوے انکوائری کے مطابق علامہ اقبال ایکسپریس 2 گھنٹے 30 منٹ، گرین لائن ایکسپریس 50 منٹ، کراکرم ایکسپریس 40 منٹ تاخیر کا شکار ہوئی۔ جعفر ایکسپریس 30 منٹ، کراچی ایکسپریس 1 گھنٹے 30 منٹ، رحمان بابا ایکسپریس 1 گھنٹے 50 منٹ لیٹ ہوئی۔ پاک بزنس ایکسپریس 1.5 گھنٹہ، تیزگام ایکسپریس 2 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی۔ عوامی ایکسپریس 2 گھنٹہ 40 منٹ، میاں والی ایکسپریس 2 گھنٹے 50 منٹ تاخیر کا شکار رہی۔ مسافروں کو گھنٹوں اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ شہر میں دودھ اور دہی سرکاری نرخ نامے کے برعکس مہنگے داموں فروخت۔ دکاندار منمانے دام وصول کرنے لگے۔ شہری پریشان۔ دودھ 180 کے بجائے 210 روپے لیٹر، دہی 210 کے بجائے 240 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ شہر میں دودھ اور دہی سرکاری نرخ نامے کے برعکس مہنگے داموں فروخت کا سلسلہ دھڑلے سے جاری ہے۔ دکاندار من مانے دام وصول کرنے لگے اور شہری پریشان ہو گئے۔ شہر بھر میں شیر فروش دودھ سرکاری قیمت 180 کی بجائے 210 روپے لیٹر فروخت کر رہے ہیں،
जबकि दही की सरकारी कीमत 210 रुपए होने के बावजूद 240 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। सरकारी नीखनामा सिर्फ कागजों तक महदूद होकर रह गया। जिली इंतजामिया दूध और दही की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। महंगाई की मसनूई लहर ने गरीब और मुतवस्सित तबके को मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। शहरियों ने कीमतों को फौरी कंट्रोल करने और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। शादियों का सीजन उरूज पर चिकन के गोश्त की खपत में इजाफा। ब्रायलर गोश्त की कीमत 595 रुपये किलो रही। उधर ओपन मार्केट में फल सब्जियों के रेट्स में उतार चढ़ाव। आलू 40 से 60, प्याज 80 से 100 रुपये किलो में फरोख्त, टमाटर 100 से 120 रुपये किलो बेचा गया। शहर में शादियों का सीजन उरूज पर है, जिसके सबब ब्रायलर गोश्त की खपत में इजाफा हो गया। फार्मर खपत के हिसाब से सप्लाई नहीं दे रहे। मार्केट जराये के मुताबिक ब्रायलर चिकन गोश्त की सरकारी कीमत 595 रुपए किलो मुकर्रर की गई। साफी गोश्त 660 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब फार्म रेट 383 रुपए किलो, होलसेल रेट 397 रुपए और परचून कीमत 411 रुपए किलो मुकर्रर की गई। फार्मी अंडों की कीमत में भी इजाफा देखा गया है। एक दर्जन फार्मी अंडे 333 रुपए, अंडों की एक पेटी की कीमत 9,870 रुपए मुकर्रर की गई। ओपन मार्केट में फल और सब्जियों की महंगे दामों फरोख्त होने लगी। ओपन मार्केट में आलू 40 रुपए से 60 रुपए, प्याज 80 से 100 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। टमाटर 100 रुपए से 120 रुपए, लहसुन और अदरक 100 रुपए पाव में बिक रहे हैं। भिंडी 200 रुपए और साग 40 रुपए किलो बेचा जा रहा है। उधर फल भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गए। अव्वल दर्जे का केला 150 से 180, किन्नू 500 से 600 रुपए दर्जन और अमरूद का रेट 100 रुपए किलो रहा। शहरियों का कहना है कि हर दुकानदार का अपना अपना रेट है, कोई पूछने वाला नहीं। आसमान पर पेच, जेब पर कैंची, पतंगों को महंगाई के पर लग गए। इंतजामिया ने पतंग फरोशों को कीमतों में फ्री हैंड दे दिया। इंतजामिया की कार्रवाइयाँ सिर्फ साइज मटेरियल के इस्तेमाल तक महदूद। पतंग और डोर की कीमतें आवाम की पहुँच से बाहर। गुड्डा उड़ाने से पहले बटवा देख लें। एक तावा गुड्डा 180 रुपये, 1.5 तावा गुड्डा 250 से 270 रुपये का मिलेगा। डोर का पिन्ना 2500 रुपये का। क्या इस बार सिर्फ अमीरों की बसंत होगी? बसंत की तैयारियां, जेब पर बोझ भी पड़ेगा। जिली इंतजामिया ने पतंग और डोर के रेट्स ओपन रखने का फैसला किया है। पतंग फरोश अपनी मर्जी के निर्ख वसूल कर सकेंगे। इंतजामिया की कार्रवाइयां सिर्फ साइज और मटेरियल तक महदूद रहेंगी। गैर रजिस्टर्ड पतंग और डोर फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जराये के मुताबिक एक तावा पतंग 150 से 180 रुपए, 1.5 तावा गुड्डा 250 से 270 रुपए तक फरोख्त होगा। सवा पीस डोर का पिन्ना 22 से 2500 रुपए में दस्तयाब होगा। डिमांड बढ़ने की सूरत में कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। इंतजामिया की कार्रवाइयां रेट्स की बजाय गैर कानूनी मटेरियल के इस्तेमाल और पतंगों के साइज तक महदूद होंगी। बगैर QR कोड पतंग और डोर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैर रजिस्टर्ड पतंग फरोशों के खिलाफ एक्शन होगा और बसंत के बाद रजिस्टर्ड दुकानदारों को बचा हुआ स्टॉक डिक्लेयर करना लाजम करार दिया गया है। जिली अफसरान के मुताबिक अरसे बाद बसंत आ रही है, इसलिए लोगों को कारोबार करने दिया जा रहा है। आइंदा साल कीमतों के तयन पर भी वर्किंग की जाएगी। बसंत की तैयारियों में तेजी आ गई। पतंग साजी में इस्तेमाल होने वाले बांस की दुकानों पर रश लग गया। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ। दुकानदार कहते हैं कि बसंत की वजह से बांस की फरोख्त 3 गुना बढ़ गई। शहर भर में बसंत की तैयारियों में तेजी। पतंग साजी में इस्तेमाल होने वाले बांस की दुकानों पर रश। मार्केट्स में कारोबार चमक उठा। पतंग साज के सामान की दुकानें खरीदारों से भरने लगी। शहरी बड़ी तादाद में बांस की खरीदारी में मसरूफ हैं। दुकानदारों का कहना है कि बसंत करीब आते ही रश बढ़ गया। पहले के मुकाबले में बांस की फरोख्त 3 गुना बढ़ गई। ये इसको इसी तरह ही चिराई करते हैं, फिर चिराई के बाद अपना पतंग में छिलाई वगैरह करके लगाते हैं। इस टाइम यानी कि डबल ट्रिपल सेल हो रही है हमारी। तो ये बांस एक्चुअली तो मल्टीपर्पज़ होता है, तो अभी तो ये अपना गुड्डी के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। 17,000 का बंडल दे रहे हैं तो तावा 1.5 तावा कट रहे हैं 42-48। ये सेल ते बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा कारोबार सी। बीबियां घर बह काम करदियां सी ते गुड्डी बना के ते मोची सेल आ करदियां सी ते घर दा समान ते घर दे सर्कट चलदे सी। वो बीबियां किहड़ियां घरां 'च बैठियां वेलियां, कोई कारोबार नहीं हुण बेचारियां कोल हो रहा। शहरी कहते हैं बसंत हमारी सकाफत का हिस्सा है। पतंगे बनाने के लिए बांस खरीद रहे हैं। गुड्डा बनाएंगे और सेल परचेज होगा। ठीक है, कौन से घर में बेरोजगार औरतें बैठी हैं, ठीक है ना, उन्हें हम जाके देंगे, वो सामान हमारा तैयार करके देंगे, हम सेल करेंगे। काफ़ी आए हैं वो पतंग फरोश और मेकर वगैरह, वो इनसे लेके जा रहे हैं। उनके बकौल तो ये था कि इनका जो है बांस वो बड़ा अच्छा है, तो वो इनसे पहले भी ले जा चुके हुए हैं, वो भी ले जा रहे हैं धड़ाधड़। इस पर काफ़ी मतलब इसमें इजाफा भी हो गया, इनकी वैल्यू में भी, इनकी वैल्यूज़ काफ़ी बढ़ गई हैं। मोस्टली तो ये शॉर्ट हो गया हुआ है, मिल ही नहीं रहा लोगों को। बसंत की गहमा गहमी के बायस न सिर्फ मार्केट्स में रौनकें बहाल हो गई, बल्कि कारोबारी सरगर्मियों में भी वाजियात तेजी देखने में आ रही है। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ अफजल रिजवान, सिटी 42। लेस्को ने बिजली चोरी की रोकथाम के मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। ज्यादा नुकसानात का बायस बनने वाले 100 फीडर्स के कंडक्टर तब्दील करने का फैसला। फीडर्स पर एरियल बंडर कंडक्टर नस्ब किया जाएगा। लेस्को एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से मेगा प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेगी।
लेस्को ने बिजली चोरी की रोकथाम के मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। ज्यादा नुकसानात का बायस बनने वाले 100 फीडर्स के कंडक्टर तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। करोड़ों रुपए की लागत से जदीद एरियल बंडल कंडक्टर तब्दील किया जाएगा। लेस्को के लिए ज्यादा नुकसानात का बायस बनने वाले फीडर्स पर एरियल बंडल कंडक्टर नस्ब किया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत मजमूई तौर पर 1300 किलोमीटर से जायद इलाके में AB कंडक्टर लगाया जाएगा। जदीद कंडक्टर पर डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी की रोकथाम में मदद मिलेगी। लेस्को एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से मेगा प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेगी। बरकी BRB पंजाब यूनिवर्सिटी फीडर पर जदीद केबल नस्ब की जाएगी। निशात कॉलोनी, फाका, मांगा मंडी, शादरा, रावी रोड, हमजा टाउन, शाहपुर, बेदिया रोड समेत दीगर इलाकों में जदीद केबल बिछाई जाएगी। बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का मुस्तकबिल धुंधला गया। इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर वक्त मांगने का फैसला। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब का तरीक़ाकार फाइनल हो चुका। इंतखाबी कवायद ज़वाबित का नया ड्राफ्ट फिर हुकूमत को भेज दिया गया। बल्दियाती कवानीन तो बन गए, मगर तारीख कौन देगा? इलेक्शन शेड्यूल ताहाल फाइलों में दब कर रह गया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकास से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। इंतखाबात का हतमी शेड्यूल तय नहीं हो सका। पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मजीद वक्त मांगने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर की बड़ी वजह इलेक्शन रूल्स और डिमार्केशन का अमल मुकम्मल ना होना है। हद बंदियों का मरहला ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका, जिसके बायस हल्का बंदियां मुमकिन नहीं हो सकी और बल्दियाती इंतखाबात मजीद मौखर होने का खदशा बढ़ गया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को 22 जनवरी को तलब कर रखा है, जहां पंजाब हुकूमत कम अज कम 1 माह का इजाफी वक्त मांगेगी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन रूल्स पर एतराजात आयद किए गए थे, जिनमें से फॉर्म 45 और फॉर्म 47 से मुतालिक एतराजात दूर कर दिए गए हैं। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब का तरीकाकार वाजे कर दिया गया है। मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात के तरीकाकार को भी हतमी शक्ल दे दी गई। इलेक्शन रूल्स की समरी दोबारा पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई है। हद बंदियों के बाद ही हल्का बंदियां मुमकिन होंगी। हल्का बंदियां कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 28वें कन्वोकेशन का दूसरा रोज़ है। CEO ब्रांड स्पेक्ट्रम अनवर कबीर, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर परवेज हसन की खुसूसी शिरकत। फैकल्टी ऑफ लॉ मैनेजमेंट साइंसेज के 470 तलबा को डिग्रियों से नवाजा गया। तलबा तालबात को गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल्स दिए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 28वें कॉन्वोकेशन के दूसरे रोज पहले सेशन में फैकल्टी ऑफ लॉ और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के 470 तलबा और तालिबात को डिग्रियों से नवाजा गया। नुमाया कारकर्दगी के हामिल तलबा में 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल्स तकसीम किए गए। CEO ब्रांड स्पेक्ट्रम अनवर कबीर, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर परवेज हसन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रो रेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब डॉक्टर हमाद नवीद शरीक हुए। सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर परवेज हसन का कहना था, जिंदगी में बड़े ख्वाब देखें, दिल की आवाज पर चलें, मस्बत रहें और मेहनत करें। The grandparents, if they are here, brothers, sisters, the families of the graduating class. It's a huge day in the life of all the graduating students today. And I want to felicitate the parents particularly, the families particularly, and the hard work of the students for getting to where you have today. I leave with my best wishes and prayers for you. अनवर कबीर का कहना था कि आज आपका ग्रेजुएशन डे है, जिंदगी का एक नया आगाज है, अपनी सलाहियतों को मुसलसल निखारें। The graduating class that has gathered today, your parents, I wish you all a very warm congratulations on this very special day. This is a day that will remain with you. The memories of this day will remain with you and your parents for the rest of your lives. So, make the best of this time, make the best of these moments, because I still remember after almost over 2 decades, my graduation day, my convocation. डॉक्टर हमाद नवीद का कहना था, UCP की तालीम तलबा को अमली और बैनुल-अक़वामी मौक़ों से जोड़ती है। Today we celebrate not only the remarkable accomplishments of our graduating class, but also the collective spirit, determination and the vision that make UCP a beacon of higher education in Pakistan and beyond. तलबा का कहना था, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने उन्हें मजबूत बुनियाद फराहम की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। 4 साल इतनी मेहनत की है, टीचर्स, फैकल्टी सब कुछ माशाल्लाह, उन सबकी मेहरबानी और दुआओं से माशाल्लाह आज यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत फख्र है और खुशी है। सबकी मेहनत होती है, टीचर्स की, पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स का हार्ड वर्क होता है और आज इस मुकाम पर पहुँचे तो एक खास अल्लाह की ब्लेसिंग है। और मैं सबको ये कहूँगा कि मेहनत करें और
अपने मुल्क का नाम रोशन करें। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब मेयारी तालीम, जदीद सोच और तलबा को कामयाबी और रोशन मुस्तकबिल की राहें फराहम करती है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के 28वें कॉन्वोकेशन के चौथे और आखिरी सेशन का इनेकाद। कॉन्वोकेशन के 4 सेशंस में 2109 ग्रेजुएट्स को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में डिग्रियों और मेडल से नवाजा गया। तलबा तलबात ने अपनी इस अजीम कामयाबी को अपने वालिदैन और असातिज़ा के नाम किया। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के 28वें कॉन्वोकेशन का चौथा और आखिरी सेशन जौहर टाउन मेन कैंपस में मुनक्किद हुआ। कॉन्वोकेशन के 4 सेशंस में 2109 ग्रेजुएट्स को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में डिग्रियों और मेडल से नवाजा गया, जिनमें 253 पोजीशन होल्डर्स तलबा भी शामिल थे। एजुकेशनिस्ट मुनीजा हाशमी ने बतौर मेहमान खुसूसी खिताब किया। फैज की बेटी हूँ तो जाहिर है कुछ फैज की बात तो करनी है। किसने वो गाना सुना है या वो गज़ल या नज़म सुनी है इकबाल बानो की, हम देखें। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। उठेगा अनल हक का नारा, जो तुम भी हो और मैं भी हूँ, और राज करेगी खल्क़े खुदा, जो तुम भी हो और मैं भी। साबिक वीसी GCWU मुल्तान डॉक्टर शाहिदा हसनैन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मुल्क को टॉप पर आप ले जाएंगे और वही रास्ता आपको नजर आएगा जो हम वेस्ट में आज देखते हैं। उनकी जनरेशंस ने टाइम दिया। तलबा और तालिबात ने अपनी इस अजीम कामयाबी को अपने वालिदैन और उसातिज़ा के नाम किया। I'm really thankful to the institute and Allah Almighty and after that my parents for supporting me and loving me to achieve this medal. Thank you so much. तो हमारी डिग्री आज की और हमें जो आज मेडल मिले हैं, we would like to dedicate it to our parents and our teacher and we will do our best ताकि हम अपने कंट्री के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। थैंक यू सो मच। प्रोरेक्टर UCP डॉक्टर हम्माद नवीद ने मेहमानों को अवार्ड से नवाजा। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ आफाक नज़ीर, सिटी 42। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल की मरकज़ी दफ्तर N123-124 में अवाम से मुलाकात। गजुमता, कान्हा, हलोकी, लखोकी समेत दीगर इलाकों के मसाइल ज़ेर गौर आए। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल की N123 और 124 के मरकज़ी दफ्तर में अवाम से मुलाकात। इस मौके पर MPA राना राशिद मिनास और MPA मियाँ इमरान जावेद भी मौजूद थे। मुलाकात में गजुमता, हलोकी रोड, कान्हा, हलोकी और लखोकी समेत मुख्तलिफ इलाकों के अवाम ने अपने मसाइल पेश किए। वफाकी वज़ीर ने मसाइल के जल्द हल की यकीन दहानी कराई। समाजी रहनुमा काजी मोहम्मद मुनीर के बेटे ने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। काजी आज़ान मुनीर की तलावत तकमील हफ्ज़ कुरान पर तकरीब का एहतमाम किया गया। साबिक MNA महर इश्तियाक और साबिक MPA चौधरी अख्तर रसूल ने शिरकत की। सबनाबाद में होने वाली तकरीब में प्रोफेसर अलहाज अब्दुल रऊफ रूफी ने शिरकत की। इस मौके पे काजी अमीर अहमद, वसीम इलियास, काजी अरशद और महमूद अख्तर हमरा थे। अब्दुल हादी, अब्दुल मनान, इब्रार सयाल और फहीम इकराम समेत अजीजो अकारिब शरीक हुए। तकरीब में काजी अजान मुनीर ने सूरह रहमान की तलावत पेश की। तकरीब में प्रोफेसर अलहाज अब्दुल रऊफ रूफी ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की तरक्की, सलामती और बका के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। कैमरामैन अहमद अली के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। अहले लाहौर का मौसम सरमा से अनोखा प्यार, गुलाबी चाय की चुस्की और बाकरखानी का साथ। भाटी गेट में सर्दी का शाहाना इलाज, लाहौरियों की मनपसंद जोड़ी की कहानी इस रिपोर्ट में। लाहौर की ठंडी रातें और कश्मीरी चाय का मजा, भाटी की गलियां और रवायतों का जायका, सर्दी का हल, एक प्याली चाय और बाकर खानी की लज्जत। कपकपाती सर्दी में गर्मा गर्म संगत, जब सर्दी हार जाए और जायका जी चाय। शहरियों की सर्द रातों में दोस्तों के साथ बैठक, गर्मा गर्म चाय से लुत्फानंदोज। कमाल है यार, मजा आ गया यार। जब बंदा इंसान थकावट महसूस करता है ना, तो कुछ पल के लिए इंजॉय के लिए यहाँ जरूर आता हूँ और इसी तरह इंजॉय होती जा रही, जिंदगी गुजरती जा रही है और मजा आता है इस चीज का। टाइम निकाल के आना, वो भी आधी रात को, इट्स सो टू मच डिफिकल्ट बट लेकिन एंजॉय किया है।
मैं इस्लामाबाद से हूँ, स्पेशल मेरे ब्रदर इन लॉ हैं इधर लाहौर में, डॉक्टर रईस साहब, वो मुझे स्पेशल इधर चाय पिलाने के लिए लेके आए हैं। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन टेस्ट है, मैंने काफ़ी जगह से चाय पी है लेकिन इनका टेस्ट माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। सर्दियों में कश्मीरी चाय किसी तिब्बी नुस्खे से कम नहीं। ये सिर्फ कश्मीरी चाय नहीं है, ये एक टॉनिक है। इसमें जो अज़ार डालते हैं हम, इसमें दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, बादिया हताई, तेज़ पत्ता, यानी कि ये अल्लाह के हुक्म से ना जो डेली का एक कप पिएगा ना, उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर्दियों में। सर्दी का तोड़ कश्मीरी चाय और बाकर खानी का जोड़, देग से उठता धुआं, गुलाबी चाय की भीनी भीनी खुशबू, बाकर खानी की लज्जत और कश्मीरी चाय का जादू जो छा जाए। ठठरती रातों में गर्मा गर्म चाय जिस्म को राहत पहुंचाए, शहरियों को तवाना बनाए। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।